we described the how to form the Y bus, and we also told why the Y bus is needed. Just to represent the whole network. The network is big enough, and number of equations of the network may be the large number, and those equations cannot be solved, and those equations you will see later. Equations are non-linear equations. These are not the linear equations as in the case of the normal power circuit which you have been solved in the normal electrical circuit using the Gauss-Seidel, Newton reaction, etc. But here you will find the equations are non-linear. So to represent the power system, just to represent the power system, we have to represent that in the form of the matrix. So that matrix can be the Y bus, that can be matrix, can be the Z bus, or that can be the Z loop, and other representations are also possible. In the previous class, we described how to form the Y bus. Means you can write the network in the form of a matrix. By inverting the Y bus, you can form the Z bus. Similarly, in the tutorial class, we also described the Z loop. In some of the tutorial class, we described the Z loop. Z loop means we can represent the network in the form of that loop also. Now, what are the power flow equations? In this lecture, we will describe what are the power flow equations. And as I told, these equations you will see, these are not the linear equations. And we know power injected at every bus. We have in the previous class we told there can be generated power, there can be the load power at every bus. At each bus there will be generation, at each bus there will be the may or may not be there. The value, if generation is not zero, you can say generation is. If generation is not there, you can call it as generation zero. If load is not there, you can call it load is zero. So finally we can say generation minus load, that is the net power injected to the bus. Sometimes neither most of the buses neither there is generation nor there is a load. So generation is zero, load is zero. So we can say injected power is zero. Means there can be any value including the zero to any other value at every bus. And in the previous class we told generation minus load, Pg is represented as a generated power, PL is represented as a load power, and Pg minus PL is called as a PI. PI means injected power at bus number I. Similarly, the reactive power injected at bus number I is QI. So this is the PI minus JQI. PI is the active power, QI is the reactive power injected at the bus. And what is this PI plus JQI? If you see what is the PI plus JQI, here, so we know this I is equal to I cos phi minus J I sin phi. Okay. Yes, sir. So, okay, this is, and what is that? V into I complex conjugate. If you write Vi complex conjugate, I is this, what will be the I complex conjugate? I cos phi plus J I sin phi. Is this okay? Into V. So we can say this is Vi cos phi, Vi cos phi, and this is a Vi sin phi. So it is a P plus JQ. Is this okay? Getting this point? Current is represented as a I cos phi minus J I sin phi. So I complex conjugate represented is, so this is the Vi complex conjugate. This Vi complex conjugate class
है तो मास्टर ने करते मेरे पीछे कुछ बोर्ड ऑन कर दे क्लास वीडियो पोस्ट कर दे पोस्ट कर ले पोस्ट कर दिया मैं यहाँ थे So here you see this Bi plus JQi is Bi complex conjugate we have just seen. And if we write complex conjugate of S, it is Pi minus JQi. So it is simple to write in place of Pi complex conjugate, it will be B complex conjugate I. मतलब B complex conjugate I is the complex power. It is a conjugate of the complex power. It is a complex power. It is a conjugate of complex power. What we are trying to do, we are, because we know the load is in terms of the P and Q, not in terms of the current. Load is neither in terms of current nor in terms of the resistance and inductances. So that's why we are trying to write power flow equation in terms of P and Q. Here you see, this is the representation of I bus is equal to Y bus, B bus. I bus is the all the injected currents at the bus number 1, 2, 3, voltage of the buses, and this is represented by this is the I bus. So from here, now what we are trying to do, we are trying to find the current from here and we will put it here. So current, what is the II? This is I1, I2, I3, IN, II. Equation for II will be the, here you see, yi1, v1, yi2, v2, yi3, v3, yi4, vn. Okay, like this. Is this point clear? ये point clear है आपको? So if you put this I here, so V complex conjugate in place of I, this in short can be written as a, in place of the 1, 2, 3, 4, we can write it as a P, and P is equal to 1 to n. P is equal to 1 to n by IP VP. Okay. Here, what is VI? VI क्या है? It is magnitude as well as angle. इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एंगल भी है. सिमिलरली YIP क्या है? एडमिटेंस. It has the magnitude as well as angle. Similarly VP, magnitude and angle. Okay. Now, and YIP can be written as a magnitude and this angle theta IP. So if you put now here you see this equation. Yes. This can be written as a VI, magnitude and angle of this delta I. So delta I here, theta I भी here और delta P here. This delta I will be, इसको अगर आप magnitude और angle के फॉर्म में अगर लिखेंगे, then this will be the angle of VI is delta I. So what will be the angle of VI complex conjugate? माइनस ऑफ डेल्टा आई. ठीक है क्या नहीं? कम्प्लेक्स कंजुगेट में माइनस हो जाता है. तो इट इज ए माइनस. सो इक्वल से नेट एंगल विल बी दी, इसको मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे. एंगल का क्या होगा? एंगल ऑफ दिस इज थीटा आई पी प्लस डेल्टा पी माइनस डेल्टा आई. इसको यहाँ लिखा है वी आई वाई आई पी बी पी दे ऑल आर मैग्नीट्यूड थीटा आई पी प्लस डेल पी माइनस डेल्टा आई. ओके, दिस इज इक्वल टू पी आई माइनस जे क्यू आई. इज देयर एनी क्वेश्चन इनटू दिस? This is the Pi minus JQi. If you compare now real part with the real part, imaginary part with the imaginary part, you can find what is Pi. इसको this is magnitude, this is angle. Magnitude and angle A with some angle alpha can be written as A cos alpha plus J sin alpha. A cos alpha plus J A sin alpha. Similar इसी तरह आपको इसको ये magnitude plus cos alpha plus J sin alpha. Cos alpha that will be compared with the Pi. So Pi is equal to this cos alpha and minus JQi is equal to the sine of this alpha. So minus this minus term will come here. So this is the, these are the equation for Pi and Qi. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? This is the net power injected at any bus I. Second is the net reactive power injected at any bus I. ये दो इक्वेशन हो गई. एंड यू कैन फाइंड हियर बोथ द इक्वेशंस आर नॉन लीनियर इक्वेशंस. ये दोनों इक्वेशन आपके नॉन लीनियर इक्वेशंस है. कैन यू सॉल्व इट? इसको आपको एक की वैल्यू दूसरे में पुट अप करके सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज दे आर नॉन लीनियर इक्वेशन, यू कैन नॉट पुट वैल्यू ऑफ दिस इनटू द अनदर. एंड सिमिलरली सिमिलर इक्वेशंस आर
for all the buses. Bus number 2 पे, 3 पे, 4 पे. At bus number 2 you can write this equation. In place of I you write 2. So this will be the P2, P3, P4 ऐसे ही Q2, Q3, Q4. हर एक बस पे दो ये पावर फ्लो इक्वेशन हो गई. And how many number of variables are there? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया वेरिएबल्स कितने होते हैं हर एक बस पे. 4. There are 4 number of variables at each bus. What are those variables? क्या है? एक तो P, एक Q और एक वोल्टेज और एक एंगल. ये 4 वेरिएबल्स अगर आपको पता है देन यू नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम. इसी से सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी. If we know these variables, we can find what are the losses, we can find what are the flows of the line, we can find the phase angle, power angle, everything we can find from these basic equations. So ये दो equations है PI and QI की. Now what is the equation for voltage and current? Then only because our intention here is to write all the power flow equations. P और Q की दो equation ये आ गई and there can be 2 more equations here. अब वोल्टेज की इक्वेशन अगर लिखना है, देखिए दिस डू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, ये अभी बताया था, याद है? I इक्वल टू YI1 V1 YI2 V2. रिमेम्बरिंग दिस और नॉट? यस सर. अच्छा, यहाँ से इसी इक्वेशन से हमने वोल्टेज निकालना है, मीन्स VI. P और Q का इक्वेशन पता लग गया और वोल्टेज और एंगल का इक्वेशन लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर वोल्टेज. वोल्टेज मीन्स ith बस का, जैसे उसमें PI एंड QI क्या है? PI इज द एक्टिव पावर एट ith बस, QI क्या है? एक्टिव पावर एट ith बस. इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? वोल्टेज एट ith बस. तो ith बस का वोल्टेज मतलब V1, V2, V3, VI. जैसे ये I हो गया VI. VI निकालने के लिए क्या करेंगे? II माइनस एवरी ऑल दी टर्म. II वैसा II माइनस YI1 V1 YI2 V2 YIN माइनस 1 VN1 YN माइनस VN. ये सब इधर चले जाएंगे तो II आ जाएगा. मीन्स II विल बी दी VN. तो II इज दिस. II is equal to Y in place of 1, 2, 3 we have written as a P. So it is a YIP BP we have P is equal to 1 to N. Is this point clear? इसमें यहाँ से ये इससे आपका ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये तो आपका II is equal to YI1 V1 plus YI2 V2 plus YII VI YI and VN. Okay. So leaving this here, rest everything if you bring on that side. So VI YII equal to II फोटोग्राफर को बुलाना राजीव. YI1 V1 minus YI2 V2 फोटो से पढ़े देते YI ओके, ठीक है. ये नाउ यू सी दिस, ये जो है in place of 1, 2, 3 we can write it as a YIP. 1, 2, 3 की जगह P और ये 1, 2, 3 की जगह आपका P. ये P is equal to 1, 2 N. इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या नहीं? लेकिन इसमें एक और ध्यान रखने की बात है, इसमें P इक्वल टू 1 to N. 1, 2, 3, 4 सब आ गया, I भी आ गया, बट I हमने इधर ले लिया था. We can say this P is not equal to I. P की वैल्यू I नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारे टर्म है. ओके, तो दिस इज अबाउट तो ये लिखा. तो from here VI equal to 1 by I, ये II की वैल्यू होगी. ठीक है, दिस ओके.
Now, ये equation you already know. From here we put this II, value of II from here. हमारा purpose क्या है? Because load, as I told, not in terms of current. It is not in terms of current. It is in terms of the P and Q. जो हमारा लोड होता है प्रैक्टिकली, अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे पूछेंगे कितना किलोवाट का लोड है, इट इज 100 मेगावाट। तो लोड हमेशा P और Q के फॉर्म में होता है। इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ करंट। दैट्स व्हाई वी आर ट्राई टू रिमूव द करंट हियर। इसका करंट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो दिस II इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, PI माइनस JQ डिवाइडेड बाय VI का प्लस कंजुगेट। इसको याद रख दिया तो ये बन गया। तो VI इक्वल टू 1 ऑब्लिक YII PI माइनस JQI VI का प्लस कंजुगेट माइनस YIT VV इक्वल टू 1 to n। So it is the equation for voltage। ith बस का ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। अब क्या बचा? P का इक्वेशन पता लग गया, Q का इक्वेशन पता लग गया और वोल्टेज का पता लग गया। कौन सा बचा? बताओ। पावर एंगल, नॉट पावर फैक्टर एंगल। क्या? पावर एंगल डेल्टा। तो जो ये वोल्टेज का जो एंगल है, वोल्टेज, अब ये क्या है? दिस इज हैविंग मैग्नीट्यूड, दिस इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। दिस इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसी का एंगल, इस वोल्टेज का इस पे लगा दिया एंगल। ठीक है कि नहीं? कोई भी हमारा ए उसका मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, तो आपका उसका एंगल भी आप निकाल सकते हैं cos फाई जे साइन करके। तो यू कैन फाइंड दिस डेल्टा आई। तो इट मींस यू हैव द 4 पैरामीटर एट ईच बस। अब सपोज यू आर हैविंग 20 बस सिस्टम। अब सपोज करिए आपकी 20 बसेस हैं, तो हर एक बस पे कितनी इक्वेशन है? हाउ मेनी इक्वेशंस विल बी देयर एट ईच बस? 4 इक्वेशन एंड 20 बस सिस्टम। तो टोटल इक्वेशन कितनी हो गई? 80। सो देयर आर 80 इक्वेशंस और 80 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो कितने अननोन होने चाहिए? कितने सॉल्व कर सकते हैं? 80 इक्वेशन से 80 तो सॉल्व कर सकते हो हैं? अरे तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सिस्टम में एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड आउट। सब कुछ आपको निकालना है। कुछ गिवन होगा उसी के बेसिस पे तो आप निकालते हैं, कुछ गिवन कुछ अननोन। तो अगर आपको सपोज करिए 20 बस सिस्टम है, तो 20 बस सिस्टम है और हर एक बस पे 2 चीजें गिवन है, 2 निकालनी है। कुछ गिवन होगा कुछ निकालना होगा। तो इट मीन्स एट एवरी बस इफ देयर आर 2 नोन मतलब कितने आपकी चीजें पता होगी? 20 बस सिस्टम में कितने 40 चीजें पता हो गई और 40 इक्वेशंस हो गई। 40 इक्वेशंस हो गई और वेरिएबल्स कितने हो गए? हर एक बस में 2 वेरिएबल्स हो गई। हर एक बस में 2 चीजें नॉन थी, 2 अननोन थी। तो हर एक बस में 2 वेरिएबल, 40 चीजें आपको निकालनी हो गई, 40 आपको गिवन हो गई। इसका मतलब हर एक पावर सिस्टम के लिए हर एक बस पे कोई भी 2 चीजें पता होना चाहिए, बकाया 2 निकालना चाहिए। 2 क्या पता हो सकती हैं उसके बेसिस पे नाउ वी डिवाइड वी गिव द नोमेनक्लेचर और वी गिव द नोमेनक्लेचर टू द बसेस। हमारी कितनी टाइप की बसेस होती हैं? That we will see। देखिए, now there are 3 type of buses in the power network। We assume, हम ये मान के चलते हैं, हमने माना हुआ है कि 3 तरह की बसेस होती हैं। फर्स्ट यू कैन से PQ बसेस। P और Q means as I told, at every bus 2 चीजें पता होना चाहिए, 2 अननोन होनी चाहिए। तो if at any bus P and Q are given, they are called PQ buses। P and Q कब given होगा? When the P and Q will be given। कहाँ पे given हो सकता है? लोड साइड में, जनरेशन साइड में। अगर लोड, जैसे आप घर है,
आपके डोमेस्टिक एज ए डोमेस्टिक कंज्यूमर यू कैन मेजर योर लोड और नॉट। आपका मीटर लगा है, वाट एनर्जी मीटर है, तो आपने टोटल एनर्जी कंज्यूम, अगर वाट मीटर लगा देंगे तो एट एवरी इंस्टेंट व्हाट इज द पावर बीइंग कंज्यूम, यू कैन फाइंड व्हाट इज द पावर। मतलब वाट मीटर और रिएक्टिव पावर पी एंड क्यू बोथ वी कैन मेजर। तो लोड साइड पे वी कैन मेजर पी एंड क्यू बोथ। अगर कोई इंडस्ट्री है तो आपने उस पर मीटर लगा दिया, यू कैन फाइंड व्हाट इज द पी एंड क्यू। सो इट मीन्स इफ पी एंड क्यू आर गिवन वी कॉल इट एज ए लोड बसेस, PQ buses, or you can say all the load buses are called as a PQ buses। ठीक है, तो एक तो हो गया PQ टाइप ऑफ बसेस, जहाँ P and Q नॉन है उन्हें PQ बसेस भी कहते हैं, लोड बसेस भी कहते हैं। एट दीज बसेस सम ऑफ द बसेस विल बी दी PQ बसेस। अब सपोज करिए आपका, प्लीज नो डिस्कशन प्लीज, सपोज इन हरियाणा यूटिलिटी देयर आर 100 नंबर ऑफ बसेस सपोज, तो आप क्या उम्मीद करते हैं आउट ऑफ 100 हाउ मेनी नंबर ऑफ PQ बसेस विल बी देयर, कितने परसेंट PQ बसेस होंगी, कितनी आपकी अदर बसेस होंगी, जनरेशन बसेस कितनी हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द बसेस आर द PQ बसेस। आप देखेंगे ना जनरेशन कितने हरियाणा में 5, 7, 8 जगह, 8 या 10 जगह पे जनरेटिंग स्टेशन है। सो जनरेटिंग बसेस आर लेस than the load buses. So most of the buses are of like this. Most of the buses are of type PQ buses where P and Q are known. Another buses are the PV buses. PV buses P and V because 4 quantities हैं P, Q, V, delta. If P and V are known, they are called PV buses. ये कब ऐसा होगा when P and V are known? पावर भी पता है, वोल्टेज भी पता है। देखिए लोड बस पर आपको वोल्टेज फिक्स हो सकती है एट लोड। आपकी इंडस्ट्री या घर है, आपका डोमेस्टिक समझ लीजिए, यू आर स्मॉल कंज्यूमर, आप घर पे आपकी वोल्टेज फिक्स हो सकती है। कैन यू मेक द वोल्टेज फिक्स, और इंडस्ट्री कैन मेक द वोल्टेज फिक्स एट इट्स टर्मिनल, जहाँ से वो पावर ले रही है वो उसमें वोल्टेज फिक्स कर सकती है, क्योंकि इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री और इट इज नॉट इन द अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंज्यूमर। ये हमारे हाथ में नहीं है वोल्टेज कितना आएगा। सो एट द लोड बसेस वोल्टेज कैन नॉट बी considered as a fixed, but at the generating bus voltage is can be maintained as a fixed। तो जनरेटिंग बस पे वोल्टेज कैसा फिक्स मेंटेन कर सकते हैं। हाँ भाई आप खड़े हो, बताओ। जनरेटिंग बस पे अगर वोल्टेज ऑन करना हो तो कैसा करेंगे, ऑन तो हर से यस एनीबॉडी एल्स मेंटेन एज ए फिक्स। कांस्टेंट वोल्टेज कैसे मेंटेन कर सकते हैं जनरेटिंग बस पे, और हु मेक्स द वोल्टेज कंट्रोल। कल भी आपको बताया था या ट्यूटोरियल में या कब, पावर इंजीनियर का क्या रोल होता है। पावर इंजीनियर का रोल होता है कि हमारा वोल्टेज और सिस्टम को स्टेबल रखना और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना। तो ये कौन मेंटेन कर रहा है वोल्टेज, जनरेटिंग स्टेशन पे बैठा हुआ पावर इंजीनियर है, वो वोल्टेज उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपका वोल्टेज को मेंटेन रखना है। तो कैसे वोल्टेज को मेंटेन करेगा, सिंक्रोनस मशीन पढ़ा हुआ आपने इलेक्ट्रिकल में, जो आपने पिछले सेमेस्टर्स में डीसी मशीन और एसी मशीन पढ़ा था, ठीक है। नो साउंड प्लीज। हाँ भाई लास्ट, हाँ सिंक्रोनस मोटर पड़ा हुआ है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिंक्रोनस मोटर का है। यस, तो ऐसे ही सिंक्रोनस जनरेटर क्या है भाई, लिसन, by making it over excited or under excited, it supply the reactive power। रिएक्टिव पावर को कम ज्यादा कंट्रोल, इट इज सिंक्रोनस जनरेटर कैन सप्लाई द रिएक्टिव पावर बाय मेकिंग इट एज ए ओवर एक्साइटेड और एज ए अंडर एक्साइटेड। हम ओवर एक्साइट अंडर एक्साइट करके उसकी रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ वी कंट्रोल द रिएक्टिव पावर वी कैन कंट्रोल द वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनस जनरेटर जनरेटिंग साइड पे नॉर्मली जो हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन है 90 और 95% 90% दे आर द सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है ना। तो आपके जनरेटिंग स्टेशन पे सिंक्रोनस जनरेटर है, तो आपका बाय कंट्रोलिंग द एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटर दे कंट्रोल द वोल्टेज
बाय कंट्रोलिंग द एक्साइटेशन क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर कंट्रोल करते हैं। रिएक्टिव पावर से क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो कहने का क्या क्यों ये बता रहा हूं, एट जनरेटिंग बस, प्लीज लिसन, एट जनरेटिंग बस पे ही हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, लोड बस पे नहीं कर सकते। और उसी का काम भी है, पावर स्टेशन पे ही काम भी है कि हाउ टू मेंटेन द वोल्टेज एज ए कांस्टेंट। तो इसीलिए दीज बसेस, पीवी बसेस, वो बसेस जहाँ पे पी और बी नॉन है, वो कौन सी हो सकती हैं, जनरेटर बस। ओनली दी जनरेटर बस कैन बी, we call them also as a voltage control buses। उन्हें हाँ यस खड़ो, इधर खड़ो, खड़ो और उधर देख, कोई हंसे, कोई डिस्टर्ब करे तो मुझे बताना। यस प्लीज। हाँ नाउ प्लीज लिसन कि एज आई टोल्ड वोल्टेज कंट्रोल बसेस, समझ गए, तो चीज आता है पीवी बसेस आर कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो एक तो होगा पीक्यू बस हो गई, दूसरी क्या हो गई, पीवी बस हो गई। एंड देखिए जिसपे ना लोड लगा है ना जनरेटर है, उसको क्या कहेंगे, हैं क्या बताना, जिस पर ना लोड लगा है ना जनरेटर लगा है, उस बस को क्या कहेंगे, हाँ रेज द हैंड, कौन बताएगा। जिस बस पे ना लोड लगा है ना आपका जनरेटर कनेक्ट है, उसको क्या कहेंगे, नहीं पता। They are also called as a PQ buses, क्योंकि लोड नहीं लगाया तो जीरो लोड है, ठीक है, नहीं लोड नहीं लगा तो जीरो लोड है, और वो भी उसको PQ बस कहेंगे। अच्छा नाउ एक तो PQ बसेस हो गई, पीवी बसेस आपको पता लगा जहाँ जनरेटर कनेक्टेड वो पीवी बस हो गया। आउट ऑफ दो जनरेटर बसेस वन बस इज कंसिडर्ड एज ए स्लैक बस। मतलब अगर आपका 10 जनरेटिंग स्टेशंस हैं, उसमें से एक बस को स्लैक बस कहेंगे। स्लैक बस क्यों, उस बस पे देखिए अगर हमने या तो पीक्यू बस और पीवी बस, अगर हमने कहा केवल पीक्यू और पीवी है, ये ही नहीं, या तो कुछ पीक्यू है पीवी है, इसका मतलब क्या हुआ, P is known to all buses, P सभी बस का पता लग गया। अगर सभी बस का P पहले से ही पता है कि ये 2 मेगावाट क्रिएट कर रहा है, वो 5 मेगावाट कर रहा है, ये 200 मेगावाट कर रहा है, ऑल बसेस 1 से लेकर 20 जितनी भी बसेस है सबका आपको P पता है, तो सभी बस का एडवांस में ही P कैसे पता हो जाएगा, क्योंकि लोड इज नॉट नोन, और लॉसेस भी हमें नहीं पता है, लॉसेस कितना होने वाला है, तो सभी बस का P नहीं पता हो सकता। जब हम सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो वी कैन नॉट एज्यूम दैट P is not at all, P is known at all the buses, ये नहीं एज्यूम कर सकते। तो कुछ बस PQ होंगी, कुछ PV होंगी, लेकिन इन एडिशन टू दैट एटलीस्ट वन बस शुड बी सच दैट इज नॉट नाइदर PQ बस नॉट PV बस। तो उस पर P नहीं है, देखिए P नहीं है तो क्या होगा, एज आई टोल्ड वन ऑफ द जनरेटर बस दैट विल सप्लाई द सम ऑफ, देखिए इंजेक्टेड पावर, कहीं से पावर पॉजिटिव इंजेक्ट हो रही है, कहीं से नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स कहाँ से, जनरेटर से पॉजिटिव होगी, लोड से नेगेटिव इंजेक्ट हो रही है। नेगेटिव इंजेक्ट कह दो या कह दो वो पावर ले रहा है, या पावर ले रहा है, उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव इंजेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव इंजेक्शन नेगेटिव इंजेक्शन उन सबका सम करेंगे तो जीरो होना चाहिए, लेकिन प्लस लॉसेस मिला के जीरो होगा। सम ऑफ द इंजेक्टेड पावर प्लस लॉसेस that should be supplied, so losses कहाँ से आएगा, losses will be supplied by the rest of the generator जो बच गया। so that generator one of the bus is considered as a slack bus, that is also called as a reference bus, that is also called as a swing bus। तो क्यों कहते हैं, उसके कंपैरिजन में दैट बस इज कॉल्ड, उसमें क्या नॉन, इसमें P and Q नॉन है, इसमें PV नॉन है, उस बस पे क्या बच गया, वोल्टेज एंड दैट इज आल्सो जनरेटर बस, तो वोल्टेज नॉन होगा, सो वोल्टेज एंड एंगल, सो दैट बस
reference bus is called as a, or the quantity known at the reference bus are the voltage and delta, power angle and voltage magnitude. दो चीजें जिस पे पता होता है उसे हम स्लैक बस कहते हैं। और रेफरेंस बस क्यों कहते हैं? बी कंसीडर पावर एंगल ऑफ दैट बस इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, पावर एंगल 0 का, उसके कंपैरिजन में दूसरी बसेस का पावर एंगल निकालते हैं। जैसे बस नंबर 1 का पावर एंगल 0 है, तो आपका बस नंबर 2 का उसके कंपैरिजन में सपोज 10 डिग्री फिर 20 डिग्री। उसका मतलब क्या हुआ? जो आपका जनरेटर का रोटर का जो मूवमेंट है, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जनरेटर जो आपका रोटेटिंग फ्लक्स है वो तो 50 हर्ट्ज पे मूव कर रहा है। 50 हर्ट्ज मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीड पे रन कर रहा है, लेकिन रोटर उससे कितना आगे, रोटर भी 50 पे रन कर रहा है, लेकिन उसके बीच में जो एंगल है वो पावर एंगल है। तो वो पावर एंगल, यहाँ का जनरेटर का एंगल को हमने 0 मान लिया, जो भी पोजीशन है। इसके कंपैरिजन में दूसरा जनरेटर है वो उससे 10 डिग्री आगे है, तो उसका एंगल 10 डिग्री हो गया, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट जनरेटर है फिर उससे 20 डिग्री आगे आ गया, तो 10 + 20 30 डिग्री हो गया। मतलब उस रोटर से उसको रेफरेंस मान के आगे कितना पावर एंगल है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ बस कॉल्ड एज ए स्लैक बस, स्विंग बस और रेफरेंस बस वेयर वोल्टेज एंड एंगल इज गिवन। तो ये आपकी क्वांटिटी, हर एक बस पे दो क्वांटिटीज, दो पैरामीटर्स नॉन होंगे, दो अननोन होंगे, एड और टोटल 4 हैं। हर एक का 2 इक्वेशन लिखा जाएगा। अगर आपका 20 बस सिस्टम है तो हर एक को 2 इक्वेशन लिखेंगे, 40 इक्वेशन हो गई। 40 इक्वेशन से आपका 40 चीजें आपको सॉल्व होंगी, बिकॉज अदर 40 आर नॉन। नाउ प्लीज रिमेंबर हियर, याद रखने की क्या बात है यहाँ पे, क्या जरूरी है कि ऑल दीज इक्वेशंस, अगर आपको 40 दीज इक्वेशंस आर देयर, इस तरह की आपकी 40 इक्वेशंस है। सपोज करिए इस तरह की आपकी ये एस, ये पी क्यू, ऐसे ही ये वोल्टेज की जो अभी बताया था 40 इक्वेशंस है, उन्हें सॉल्व करना इतना आसान नहीं है कि आप 40 इक्वेशंस या कोई भी 2 इक्वेशन भी हो, अगर आपकी ये 2 इक्वेशन नहीं हो P1 Q1 तो भी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, दो नॉन है, दो गिवन है, साइन और कॉस की वैल्यू है। सो बिकॉज दीज आर द नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो इटरेशन टेक्निक यूज करते हैं या कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं। सो वी विल टेक नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्क्राइब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब द अप्रोक्सीमेट लोड फ्लो स्टडी। तो अप्रोक्सीमेट मतलब क्या करेंगे, उसमें हम कुछ अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे सो दैट नॉन लीनियर इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर इक्वेशन, एंड लीनियर इक्वेशन वी नो हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमें पता है तो हम कर सकते हैं। thereafter we will solve non-linear equation itself, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन किया था, तो जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो रिजल्ट में भी कुछ अप्रोक्सीमेशन आएगा। although रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इट बिकम वेरी मच सिंप्लीफाई, चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। और रिजल्ट अगर आपका कहीं आपको 99% ओके रिजल्ट चाहिए इन प्लेस ऑफ 100, तो बेटर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। तो हम अप्रोक्सीमेट लोड फ्लो स्टडी यूज करते हैं। व्हेन वी वांट सम मोर एक्यूरेशन देन वी कैन यूज द अदर मेथड्स। ओके, यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन सो फार? नो सर। सो हर एक रो में से एक एक व्यक्ति कोई भी एक एक क्वेश्चन पूछो, सोच लो। गर्ल्स, एनी क्वेश्चन? और सेकंड लास्ट रो, हाँ आप बताओ, सेकंड लास्ट रो इधर से फर्स्ट। एनी क्वेश्चन? स्लैक बस का बस माना तो दिखा देना। देखिए अभी आपको जस्ट बताया था स्लैक बस इज नॉट PQ बस, नॉट PV बस।
लेकिन ये जनरेटर बस ही है। हाईएस्ट कैपेसिटी जनरेटर को किसी एक बस को स्लैक बस बनाना हमारा मजबूरी है, बिकॉज एट ऑल बसेस पी कैन नॉट बी प्री डिफाइंड। तो एक बस को बनाना है, तो हमने हाईएस्ट जनरेटिंग बस को आपको स्लैक बस बना दिया। लेकिन अब उसका मतलब क्या है, उस बस पे पी नॉन नहीं होगा, क्योंकि इट विल सप्लाई द नेट पावर रिक्वायर्ड। जनरेशन माइनस डिमांड एंड लॉसेस को कंसीडर करके नेट पावर जो होगा दैट विल बी सप्लाइड बाय दैट, सो दैट इज नॉट नोन इन एडवांस, सो पी इज नॉट नोन। एंड सिंस इट इज जनरेटर बस, तो वोल्टेज इज नोन, तो वोल्टेज इज नोन एंड डेल्टा इज कंसीडर्ड एज ए जीरो, बिकॉज उसके कंपैरिजन में और एंगल दूसरे जो जनरेटर है, दूसरे सिंक्रोनस जनरेटर्स हैं, उनका एंगल हम उसके कंपैरिजन में निकालेंगे, उसको जीरो मानेंगे, तो नेक्स्ट का 10, 20, 30, 21, 22 ऐसे पावर एंगल आएगा। So that is considered as a slab bus. Okay. So in the next class we will discuss how to solve these equations. Any question, please? If no question, thank you very much. And we will meet in the tutorial class, one of the